Sir, Sangeeta Siddhant Sanskrit Department, ADMC Ashta. First of all, I welcome all in this session of guest lecture on the topic Kalpana Siddhi Adhyay of Charak Sanhita Siddhisthan. It is pleasure to introduce our great guest speaker for today's session, Dr. Manoj Kumar Chaudhary, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Dr. Chaudhary, sir, is a distinguished academician and researcher in the field of Ayurveda. Currently, he is serving as an associate professor and head of department at Ashtanga Ayurveda Mahavidyalaya in Pune. His academic and professional background, Dr. Chaudhary, sir, brings over 24 years of experience in teaching and promoting Ayurveda and Panchakarma. His academic journey is marked by high-level qualifications, including BMS and MD Ayurveda Sanhita from Ashtanga Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. He has completed his PhD in Ayurveda Sanhita from Ashtanga Ayurveda Mahavidyalaya, Pune. He also have additional degrees in Sanskrit, that is BA Sanskrit, and basic and advanced diplomas in Yoga and Ayurveda. In research and leadership, an accomplished researcher, Dr. Chaudhary sir, has served as a clinical investigator and principal investigator for various randomized controlled trials focusing on conditions such as male sexual health and edema. His leadership extends to several national and regional boards. Board of Studies member for Maharashtra University of Health Sciences and Datta Meghe Institute of Medical Sciences. He is expert committee member for the National Commission for Indian System of Medicine, where he contributed to developing outcome-based curriculum for BMS program, such as Padartha Vignan subject for first BMS and Sanhita Adhyayan 3 subject for third year BMS. Dr. Chaudhary sir is a profile author, prolific author and educator. He is the author of the book Padartha Vignan Evam Ayurved Ityas. Also, he has published 36 plus research papers in prestigious index journals including Scopus and Web of Sciences. He is also a content creator. He maintains an educational YouTube channel named Authentic Ayurveda with Dr. Manoj Chaudhary, featuring over 280 videos to bridge classical Samhita concepts with modern practice. His excellence in the field was recognized nationally in 2016 with the late Trikamji Acharya Award. Dr. Chaudhary sir has also traveled internationally to countries like Japan and Italy to scientifically disseminate Ayurvedic knowledge. I again welcome our honorable speaker, Dr. Manoj Kumar Chaudhary sir. And now I request Dr. Chaudhary to commence the session. Thank you, sir. Thank you all. Thank you very much, my friend, Dr. Prashantji. So, for nice introduction, and he is one of a companion of my journey. So, thank you, sir. So, hope my slides and screen are visible properly. Yes, sir. So, first of all, I want to thanks especially honorable directors and trustees of Jnaneshwar Shikshan Sanstha, Shri Anna Sahib Dange Ayurved College, Ashta, Sangli, my beloved friend and principal Dr. Parag Deshmukhe sir, principal of Shri Anna Sahib Dange Ayurved College, and I remember academic work with him of MAHS Nashik few years ago, and definitely my friend, Professor and HOD, Dr. Prashantji Shirke, HOD of Samhita Siddhanta Department, and his team. Okay, so before going to the actual topic, Charak Samhita Siddhisthan, we will see today chapter 1, Kalpana Siddhi. We'll try to cover as much as possible this first adhyay or chapter. Already Dr.
Prashant ji has introduced. So directly we will start on the discussion of the topic. Okay. So you all know that this is the Kalpana Siddhi. Adhyay name is Kalpana Siddhi. So we will not go in detail, but wherever necessary, we will see the commentary part also, especially of Chakrapani Datta. So Kalpana Shabdena Iha Panchakarmanga Anga Kalpana Uchyate. That means पंचकर्म जो हम करने वाले हैं उसके लिए पूर्व कर्म के तौर पे जो स्नेहन स्वेदन प्रयोग के साथ हमने करना है, इसलिए सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन इन पंचकर्म अंगों के बारे में हमें यहाँ पे एक हम विस्तृत नहीं कहेंगे, लेकिन संक्षेपतः यहाँ पे उसकी जानकारी या एडवाइस या कैसे उसको हमने अकम्प्लिश करना है उसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो ये पहला अध्याय जो है वो हमें कुछ 12 प्रश्नों के साथ मिलता है। ये 12 प्रश्न जो है हमें सभी को ज्ञात है, हम संहिता अध्ययन 3 के विद्यार्थी मेरे सामने हैं, तो कि चरक संहिता जो है पुनर्वसु अत्रेय और उनके जो 6 शिष्य है और उसमें भी प्रश्न पूछने वाले अग्रेसर है आचार्य अग्निवेश जी। तो पुनर्वसु अत्रेय गुरु और शिष्य अग्निवेश जी, इनके संवाद स्वरूप में हमें ये संहिता मिलती है और ये हमारा उनका हमारे ऊपर शास्त्र के ऊपर एक हम कहेंगे उपकार भी है, जिनके माध्यम से ये संहिता हमें उपलब्ध है आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 12 क्वेश्चंस आर देयर। वी विल सी इन नटशेल ऑल these संहिता questions are related with the सिद्धि। Now what सिद्धि means? खास करके सिद्धि स्थान ये 12वां स्थान है और विशेषतः यहाँ पे सिद्धि शब्द जो आता है वो हम कहेंगे मंगलाचरण या मंगलवाचक के तौर पे आता है। अब ये सिद्धि यानी चिकित्सा की सिद्धि जिसके ऊपर डिपेंड है वो क्या है? पंचकर्म, खास करके शोधन चिकित्सा जो श्रेष्ठ चिकित्सा कही है। तो संपूर्ण चिकित्सा जैसे वमन, विरेचन, बस्ती इत्यादि, इसके कारण ही चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होगी, इसीलिए ये सिद्धि शब्द यहाँ पे इस स्थान के लिए प्रयुक्त किया गया है। हम 12 प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, तो खास करके व्हाट प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन द पंचकर्मा थेरेपीज, व्हाट शुड बी इट्स ऑर्डर, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, कौन से कर्म के बाद क्या करना है, ये कर्म ठीक से हुआ है, वमन ठीक से हुआ है, विरेचन ठीक से हुआ है, नहीं हुआ है, तो सम्यक योग, अति योग, हीन योग इत्यादि लक्षण कौन से होते हैं या कैसे उनको हम जाने। खास करके बस्तियों के विशिष्ट प्रकार आते हैं और उन बस्तियों को कितनी संख्या में, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न है। फिर कौन सी बस्ती किन व्याधियों में देनी है, उनकी गुण किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में प्रश्न आया है। और कौन सी बस्ती किस व्यक्ति को या रोगी को देने चाहिए, इसके बारे में 6ठा प्रश्न है। 7वां है उस पंचकर्म के दौरान कौन से हमने पथ्यापथ्य रिस्ट्रिक्शंस क्या हमने फॉलो करने चाहिए, उनके बारे में हमें गाइडेंस मिलता है। ये प्रश्न 7वां। सभी प्रश्नों की चर्चा आज के व्याख्यान में पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम ज्यादा तौर पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश आज करने वाले हैं। ठीक है, तो 8वां है कि 2 चिकित्सा जो रहेगी या 2 थेरेपीज जो रहेगी उसके बीच में क्या अंतराल होना चाहिए। अगर बस्ती ठीक से दी जा रही है नहीं है, वो ठीक से किस प्रकार से होनी चाहिए। 10वां जो प्रश्न है वो खास करके आता है कि कितने समय में बस्ती बाहर आनी चाहिए। 11वां जो है अगर बस्ती ठीक से बाहर नहीं आती है तो उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। और 12वां लास्ट में आता है वो है कि हमें पता है कि क्यूरेबल या जो चिकित्सा साध्य व्याधि है उनकी ही चिकित्सा यहाँ पे बताई, ऐसे स्वयं चरकाचार्य कहते हैं। तो अगर साध्य व्याधि है ओके और वो क्योर नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो वाई सम डिसीजेस दो क्यूरेबल डू नॉट गेट केयर विद द प्रॉपर मेडिकेशन, उसके क्या कारण हो सकते हैं। अर्थात
यशस्वी चिकित्सा होने के लिए पंचकर्म ये अत्यावश्यक अंग है और उन अंगों को अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान सिद्धि स्थान है। और वहाँ पे न केवल उसकी विधि बताई गई है, अपितु वहाँ पे उसके डिटेल्स, कॉम्प्लिकेशंस, व्यापद क्या होते हैं और व्यापदों की चिकित्सा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसका बिल्कुल लॉजिकल और साइंटिफिक हमें सब डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो पर्याप्त है चिकित्सा करने के लिए। यशस्वी चिकित्सक के लिए आवश्यक ऐसी सभी बातें वहाँ पे वर्णित है। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो खास करके स्नेहन किस प्रकार से, या हम कहेंगे उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ दैट स्नेहन चिकित्सा। जो स्नेहन स्वेदन ये स्वतंत्र चिकित्सा के तौर पे भी उपयोग उनका किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्णन है वो खास करके पंचकर्म का अंग स्वरूप यानी पूर्व कर्म के स्वरूप में यहाँ पे वर्णित है। जैसे किसी विद्यार्थी को या स्नातक को यह प्रश्न हो सकता है कि भाई हम अगर शमन चिकित्सा के लिए कोई स्नेह का पान कर रहे हैं तो वो ज्यादा समय तक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्णन है कल्पना सिद्धि अध्याय में वो पंचकर्म के पूर्व कर्म के तौर पे है, इसलिए वहां पे मर्यादा बताई है और खास करके कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक यहाँ पे मर्यादा वर्णन की है। ठीक है, तो ये किस लिए, तो हम चक्रपाणि दत्त की टीका जब देखते हैं तो वहां पे हमें स्पष्ट यहाँ पे मिलता है, अर्थात मूल श्लोक में भी वहां पे बताया है कि सप्तदिनात् परम तु सात्मी भवेत्, ऐसा वहां पे कारण भी बताया है। तो 3 दिन किसको करना है और 7 दिन कहाँ पे करना है, तो इसके लिए हमें जानकारी मिलती है। खास करके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मृदु क्रूर कोष्ठ विषय भेदेन, तो 3 दिन मृदु कोष्ठ के लिए और 7 दिन जो है वो क्रूर कोष्ठ के लिए। तो मध्य कोष्ठ की जो बात आती है वो 5 दिन के लिए वहां पे करने हैं। उसके भी रेफरेंसेस हमें, या शास्त्रीय जो मत है वो विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मृदु कोष्ठ स्त्रीरात्रेण स्नीयात, तो यहाँ पे क्रूर कोष्ठ जो है वो सप्तरात्रेण मानवः बताया, पंचदिनेन मध्य कोष्ठस्य स्नेहनम नेयम। तो स्पष्ट रूप से चक्रपाणि दत्त यहाँ पे हमें संकेत देते हैं कि जो मध्य जो है कोष्ठ वो 5 दिन के लिए उनको स्नेहन करना चाहिए। अब यहाँ पे जो संशोधन अंग स्नेहन पूर्व कर्म हम कर रहे हैं उसके उपयोग या फलश्रुति 7वें श्लोक में आती है। तो वो क्या, वात दोष का शमन होता है। स्नेहो अनिलम हंति, हंति शब्द का प्रयोग जो है वो विशेष रूप से करता है इस अर्थ में, मृदु करोति देहनाम, देह को मृदु सॉफ्ट करता है। मलानाम विनिहंति संगम, तो विस्तार से इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ शास्त्रीय जो बातें हैं, संशोधन आज के कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्पररी साइंसेस में रिसर्च आर्टिकल्स में जो करना है वो भी कुछ मुझे आपके सामने आज रखना है। आगे आता है स्वेदन के बारे में, स्नेह पूर्वक स्वेद फलम आह। केवल स्वेदन करने से ये लाभ प्राप्त नहीं होने वाले, स्नेहन के बाद जो स्वेदन किया जाएगा उसका ये फलश्रुति 8वें श्लोक में दिया है। सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदाः तु दोषम नयति द्रवत्वम। अब चक्रपाणि दत्त स्पष्टतः यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्मेषु इति सूक्ष्मेषु अपि, यानी स्थूल जो बड़े स्रोतस है उनके बारे में तो वो करेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो शब्द है देखिए, सूक्ष्मेषु अयनेषु, और यहाँ पे है सूक्ष्मेषु इति सूक्ष्मेषु अपि। So very micro capillary channels that will be also well proper। वहां पे जो लीन दोष है उनको द्रव अवस्था में लाने का कार्य स्वेदन चिकित्सा करने वाली है। अर्थात चक्रपाणि दत्त इसलिए पुनः यहाँ पे प्रकाशित करते हैं कि स्नेह पूर्वक स्वेद, और ये क्या है, हमें यहाँ पे फिर से एक बार ये दोहराना पड़ेगा कि ये पंचकर्म का अंग के तौर पे, पूर्व कर्म के तौर पे जो आएगा उसके लिए ये शब्द आया है या फलश्रुति आई है। ठीक, तो चलते हैं आगे।
स्लाइड्स मूव हो रही है ना ठीक से? ओके। Yes, sir. Yes, sir. No problem. चलो तो चलिए आगे चलते हैं। खास करके यहाँ पे जो हमें वमन विरेचन ये मुख्य कर्म करने हैं, उसके पूर्व कर्म में वहां पे उत्क्लेशकर आहार की बात की गई है, जो 8वें और 9वें श्लोक में आती है। और वहां पे क्लियरली मेंशन है, अगर वमन करना है तो खास करके आपको वहां पे दूध के साथ प्रयोग करना है। और कोई नॉन वेजिटेरियन वहां पे रेसिपी चाहता है तो वो एक्वेटिक और वेटलैंड यानी ग्राम्य और उदक इनके मांस का प्रयोग करेगा, मांस के रस का एक्चुअली। और विरेचन के लिए जो है वहां पे यूष इस्तेमाल करेगा, और खास करके जांगल प्राणियों का। अब यहाँ पे ये स्पष्ट, यहाँ पे ग्रंथकार वहां पे चक्रपाणि दत्त भी स्पष्ट इंगित करते हैं कि खास करके विरेचन अगर कराना है तो किस प्रकार की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, कितने समय के लिए होनी चाहिए, और वमन कराना है तो कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहाँ पे टीका में हमें ये स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अगर आपको वमन कराना है पेशेंट का तो 1 दिन के लिए, और विरेचन कराना है तो 3 दिन के लिए इस प्रकार के आहार की योजना करनी है। ठीक है, तो ये भी कितने समय के लिए, एक ही बार करना है वमन के लिए, और विरेचन के लिए 3 दिन तक कराना है। आगे बात आती है 9वें और 10वें श्लोक में, खास करके द्वितीय प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ पे देने का हमें प्रयास जो है पुनर्वसु अत्रेय जी करते हैं, किस प्रकार से होना चाहिए। और वमन और विरेचन ये किस कारण से, यानी वमन की दवाई दी जाती है तो पेशेंट को विरेचन होता है, और विरेचन की हम चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन वमन होता है, ऐसे किन स्थितियों में होता है, वो वर्णन 9वें और 10वें श्लोक में हमें मिलता है। कि अगर कफ अधिक है तो वहां पे डेफिनेटली कौन सी चिकित्सा हम करने वाले हैं, तो वमन चिकित्सा करने वाले हैं। लेकिन अगर कफ ज्यादा बड़ा नहीं है तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वमन की दवाई दी है तो भी विरेचन होने वाला है पेशेंट को या व्यक्ति को। और अपोजिट स्थिति, अगर कफ कम है और ऐसे स्थिति में आपने वमन की दवाई दी तो ऐसे स्थिति में क्या होना है पेशेंट को, तो विरेचन की जगह वहां पे वमन होना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको समझिए। तो बिल्कुल क्लियर अगर संक्षेप में कहा जाए तो जिस पुरुष को कफ दोष की अधिकता होगी वो क्या करेगा, बिल्कुल ठीक से ही उसको वमन होगा, और ऐसे स्थिति में कफ की अधिकता अगर नहीं है तो विरेचन होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब क्रम कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्निग्धाय देय वमनम इस श्लोक में विशेषतः किस प्रकार से वमन और विरेचन का क्रम होना चाहिए उसका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। खास करके यहाँ पे यथाविधि वमन हो जाए तो उसके लिए पहले तो स्निग्धाय देयम वमनम, तो यहाँ पे बिल्कुल स्नेहन स्वेदन ठीक से हो जाए तो ही वमन देना है, और वमन के बाद फिर संसर्जन क्रम प्रियादि अनुक्रमश्च, ये खत्म होने के बाद फिर उस रुग्ण को, उस व्यक्ति को पुनः स्नेहन स्वेदन विरेचन के पूर्व कर्म के तौर पे देना है और फिर विरेचन कराना है। इस प्रकार से उसका क्रम होना चाहिए। आज लोग हम देखते हैं व्यवहार में कि समय की उपलब्धता कम होती है, और कुछ मैंने कम समय में आप कुछ तो करो, डॉक्टर ऐसे करते हैं, और हम कुछ वैद्य ऐसे देखते हैं, डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर हम ऐसे देखते हैं कि वो अपने शास्त्र को फिर वहाँ पे तोड़ मरोड़ के 3-3 दिन का पैकेज करवाते हैं, या वमन भी करवाएंगे और तुरंत वो उसका संसर्जन क्रम
खत्म नहीं होता तो विरेचन का जो है वो स्नेहपान चालू करवाते हैं। तो ये रुग्ण में या व्यक्ति में जरूर कॉम्प्लिकेशंस, और वो वैद्यकृत व्यापत, वो रुग्णकृत नहीं रहेंगे, वैद्यकृत व्यापत है। तो इसलिए जो साइड इफेक्ट्स दिखेंगे वो सीवियर होने की संभावना होती है अगर रुग्ण का सेहत्व उतना नहीं है तो। अब ये वमन विरेचन के बाद, हालांकि कल्पना सिद्धि अध्याय में जो है वो पूरा पंचकर्म की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहला अध्याय होने के कारण वो महत्वपूर्ण बातों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। उसको हम कह सकते हैं नटशेल में या संक्षेप स्वरूप में। इसके डिटेल्स आगे के अध्यायों में हमें और अच्छे से मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है संसर्जन क्रम की, और वहां पे उत्कृष्ट उदाहरण उपमान प्रमाण का देते हुए वो बात समझाने की कोशिश आचार्य हमें करते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पे यथा अनु अग्नि तृण गोमयादेह, इस श्लोक में जो है वो उपमान बताया है, उपमान प्रमाण का प्रयोग किया है कि थोड़ी सी आग अगर है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, यानी वमन में या विरेचन में जो स्नेहपान किया जाता है उसके वजह से, और वमन विरेचन में जो वेगों का हम इंड्यूस करते हैं, वेग हम उत्पन्न करते हैं, उसके कारण से भी शरीर का जो है ओवरऑल बल कम होता है, अग्नि का बल कम होता है। इसलिए शुरुआत जो करनी है वो बिल्कुल कम या हल्का पचने के लिए हो ऐसे आहार से करना है। और वहां पे उपमा देते हैं अनुहु अग्नि, अग्नि जो है वो मंद है या कम है तो तृण गोमय इत्यादि पहले हम इस्तेमाल करते हैं। आप कैंप फायर जलाए होंगे जरूर, तो वहां पे हम देखते हैं कि तिनका हम यूज करते हैं, या मराठी मध्ये आपण त्याला गौरी म्हणतो, या वनोत्पल भी कहते हैं हिंदी में। तो उस गोमय का प्रयोग हम करते हैं और फिर बड़े काष्ठ आप देते हो। उसी प्रकार से हल्के आहार से नॉर्मल जो डाइट है हमारा हमेशा वाला, उसको चालू करना चाहिए। तो ये क्रम जो है वहां पे विस्तार से वर्णन करते हैं, पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम च युषम रसम इत्यादि। वहां पे ये टेबल संक्षिप्ततः आपको पर्याप्त है जानकारी देने के लिए। अब यहाँ पे कितने वेग आते हैं, तो जिसको हम मॉडरेट कहेंगे, मिनिमम कहेंगे या मैक्सिमम कहेंगे, उसको आप नंबर्स देखिए, क्वांटिटी देखिए, एंड प्रोडक्ट देखिए। अब इसको क्या है, परीक्षा भी कहते हैं। पहला जो रो है उसको हम अनोटेट करते हैं तो आप आसानी से उसको थोड़ा विजुलाइज कर पाएंगे। तो ये जो है नंबर ऑफ एमएसिस, ये क्या है, वैगिकी परीक्षा। तो मॉडरेट यानी सम्यक योग 6, और यहाँ पे हीन योग 4 और अति योग 8 बताए। ठीक है, तो इसमें स्पष्टतया है यहाँ पे जो श्लोक आते हैं, अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स देखेंगे तो वहां पे 14वें श्लोक में वो स्पष्टतया वहां पे उल्लेख करते हैं, सविट्पानीय वेगान मेयम विरेके वमने तु पीतम। यानी अगर विरेचन आप दे रहे हैं तो पहले 2 और 3 जो है वो मल के वेग होते हैं, उसका आप काउंटिंग में उसको ना ले। और ऐसे ही वमन का जो आपको द्रव्य का काउंटिंग करना है, क्वांटिटी मेजर करना है, तो वहां पे आपने जो वमनोपक द्रव्य जैसे इक्षुरस हो या ज्येष्ठमत का फांट हो, जो भी दिया है वो क्वांटिटी उसमें से माइनस कर देनी चाहिए। तो क्वांटिटी यहाँ पे जो है वो परीक्षा जो है उसको मानिकी परीक्षा भी कहते हैं। तो नंबर जहाँ पे है उसको वैगिकी कहेंगे, क्वांटिटी जहाँ पे है उसको मानिकी कहेंगे, और ये एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लिंजिंग, सो अंत किस दोष से हुआ है उसको कहते हैं आंतिकी परीक्षा। या उसको हम लैंगिक परीक्षा में क्या आएगा, लक्षण, लिंग माने लक्षण बताते हैं, वो लैंगिक परीक्षा आगे बताते हैं। तो यहाँ पे वैगिकी, मानिकी और आंतिकी परीक्षा दी। तो ये आपके सामने है, इसको हम नहीं दोहराएंगे। विरेचन के लिए 30 वेग ये अति योग है, 20 योग सम्यक है, 20 संख्या, और 10 संख्या जो है वो हीन योग है। ठीक, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा हमें स्पीड जो है ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक, ये सम्यक जो वमन हुआ है उसके लक्षण आपके सामने है। खास करके
सम्यक वमन के बारे में अगर कहा जाए तो किस प्रकार से वहाँ पे क्रम रहता है दोषों का बाहर निकलने का, वहाँ पे वो पहले क्रमात् कफाः पित्तम अथा अनिलश्च यस्य इति सम्यक वमिताः स इष्टाः। सो कफ पित्त वाम वात ये सीक्वेंस रहते हैं। तो जब आप अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो तो आप वमन अगर ऑब्जर्व किए हैं या कीजिए अगर नहीं किया है आज तक तो ये स्पष्ट वमन के वक्त हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले तो कफ निकलता है, वहाँ पे फ्रॉदिंग सब्सटेंस जो है मटेरियल बाहर निकलता है जिसका झाग भी बनता है, जो टब में हम वमन करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं। बाद में अगर आप बीच बीच में पेशेंट को टेस्ट पूछेंगे कि आपका जो है वो टेस्ट कैसे है जीवा का, तो जब पित्त आने लगता है तो तीक्ष्णता भी आती है और वहाँ पे खट्टा और कड़वा ये टेस्ट भी पेशेंट बताता है। और ये दोष कम हो जाए, बिल्कुल निकल जाए, पूरी तरीके से तो नहीं निकाल सकते हम बिकॉज बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इवन दो वी फॉलो द सीक्वेंस वेरी प्रॉपरली, क्लासिकल सीक्वेंस ऑफ वमन, विरेचन, पूर्व कर्म ठीक से किए हैं हमने, उत्क्लेश कर आहार भी ठीक से दिया है, बिल्कुल ज्ञापक ऐसा रुग्ण है हमारा, फिर भी हम पूरी तरीके से इन दोषों को नहीं निकाल सकते। और लास्ट में हमें वात दिखाई देता है और वो वात जो है वो डकार यानी उद्गार पेशेंट को आते हैं। तो इस प्रकार से उनका दोषों का बाहर निकलने का सीक्वेंस जो है वो हमें व्यवहार में भी दिखाई देता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव आएगा। अर्थात ये जो श्लोक है यहाँ पे वो हमें तृतीय प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक, तो वमन कारक औषधों का जब प्रयोग किया जाएगा तो किस प्रकार से दोष बाहर निकलते हैं उसका क्रम बताया है, और फिर वहाँ पे व्यक्ति के अंग जो है वो अंगों के अनुसार हृदय जैसे परशुका या पार्श्व यानी फ्लैंक्स, देन मूर्धा यानी हमारा सर मस्तिष्क, और खास करके इंद्रिय मार्गों की शुद्धि होती है, शरीर में हल्कापन आता है। तो दोज आर द ग्रॉस साइंस which we can say a very simple clinical science which we can get that knowledge even though by discussing with the patient or the person whom we have administered the vamana. Now next, ये लक्षणों के बाद आगे आता है अयोग या जिसको हम हीन योग भी कहेंगे। तो 16वें श्लोक में ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं कि हीन योग के लक्षण खास करके क्या होता है। और जब तक आप विद्यार्थी हो आयुर्वेद के और आगे जाके पेशेंट्स को आप आपके ओपीडी में आपके आईपीडी में कराने वाले हो ये सब प्रोसीजर्स, तो आप खुद पहले महसूस करें, खुद पहले आप वमन ले। अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो ये वमन के लिए बहुत अच्छा सीजन है क्योंकि कफ का विलयन होता है यहाँ पे। तो आप सामने दृक श्राव्य माध्यम से ही है, तो नहीं तो मैं आपको पूछता कि आप में से किस किस ने वमन आज तक लिया है, क्योंकि आप 3rd ईयर स्कॉलर हो, अभी 3rd प्रोफेशनल ईयर में हो, तो कम से कम आपने 2 बार तो लेना चाहिए, अब तक लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया है तो उसको पहले एक्सपीरियंस कीजिए। तो हीन योग हुआ तो क्या होता है, किस प्रकार से आपके शरीर के ऊपर अर्टिकारिया आता है वो खुद आप महसूस नहीं करोगे, तो ये लक्षण जो है आपको अव्यावहारिक शायद लग सकते हैं। तो स्फोट, कोठ, कंडू, इस प्रकार से वहाँ पे हमें लक्षण देते हैं। शरीर जो है वो ज़्यादा गौरवपूर्ण लगता है, खास करके एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वहाँ पे हमें हेवीनेस, पेशेंट को हमें मतलब जो पेशेंट जिसको करा रहे उसको ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हीन योग, मिथ्या योग इस शब्द में हीन और अति दोनों आ जाते हैं एक्चुअली। सम्यक योग के लक्षण जो है वो इसके बाद में देखेंगे। अति योग, ये जो परीक्षा है ना, हम बात कर रहे थे वैगिकी, मानिकी और अंतिकी, तो यहाँ से जो ये लक्षण डिटेल शुरू होते हैं, तो ये कैसे है, लाक्षणिक परीक्षा या लैंगिक परीक्षा, और इस परीक्षा को ही ज़्यादा व्यवहार पूर्ण हम सभी इसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। शायद टीचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो है, रिसर्च या कॉलेज एफिलिएटेड जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसके अलावा शायद ही हमें ये काउंट जो है वो इतने सीरियसली कोई बताता है और लेता भी है, वैगिकी, मानिकी या खास करके इन 2 परीक्षाओं के बारे में। अंतिकी तो हम पूछ के भी जानकारी ले सकते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये अतियोग के जो लक्षण है वो खास करके तृणमोह, मूर्छा, अनिल कोप इत्यादि ये लक्षण देते हैं। इसको स्किप करते हुए आगे जाएंगे। सॉरी। तो सम्यक विरेचन के लक्षण, अब वमन की बात हो गई, अब विरेचन के लिए उसी पद्धति से कौन से लक्षण सम्यक के होते हैं, फिर हीन योग के होते हैं और अति योग के यहाँ पे हमें क्रमशः 20वें श्लोक तक प्राप्त होते हैं। अब ये जो संशुद्धि वमन हो या विरेचन हो, ये होने के बाद क्या हमने करना चाहिए, इसके बारे में श्लोक क्रमांक 20 से 22 तक वो सभी वर्णन हमें मिलता है। यानी यहाँ पे पेशेंट का वमन हो गया और आगे जाके अब क्या करना है। तो संसृष्ट भक्तम नवमे अन्नी, तो वमन और विरेचन होने के बाद खास करके जो ये इस प्रकार से शुद्ध, यहाँ पे क्या बताते हैं पाययेत अपि अनुवासयेत वा। तो 90वें अन्नी यानी 90वें दिन में जिसका संसर्जन क्रम वगैरह ये पूरा होके पूरा तरीके से संसृष्ट भक्तम यानी संसर्जन क्रम का जिसका पालन कराया हुआ है और फिर बल प्राप्ति हुई है उस व्यक्ति को, क्योंकि शारीरिक बल भी उसका कम हुआ होता है और फिर हमने देखा अग्नि बल तो कम होता ही है। तो ऐसे व्यक्ति को पुनः वो नॉर्मल हो जाए, अपनी सम्यक स्थिति को आ जाए, तो ही आगे ये 90वें दिन में घृतपान कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो घृतपान यहाँ पे शब्द आया है ना, वो खास करके नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसीजर के लिए है। यानी वमन से आपने शुरुआत की है तो नेक्स्ट विरेचन देने के लिए भी 90वें दिन में आप विरेचन का स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म कराने का आप शुरुआत करेंगे। और आपने विरेचन किया है और फिर आपको आगे का कोई बस्ती इत्यादि क्रम करना है तो भी 90वें दिन ही शुरू करना है, ये इसका तात्पर्य है। तो देखिए ये थोड़ा सा सीक्वेंस आपको ग्राफिकल आपके सामने दिया है कि वमन हुआ है और फिर 9 दिन होने के बाद 9वें अन्नी यानी 90वें दिन में 90वें दिन को स्नेहपान फिर से शुरू कराना है, फिर विरेचन कराएंगे, फिर 9वां दिन का गैप लगेगा और फिर बस्ती चिकित्सा होगी। जो भी काल कर्म बस्ती के विभिन्न प्रकार है संख्या के अनुसार वो कराएंगे आप, ठीक है। खास करके अनुवासन बस्ती और फिर 3 दिन के बाद जो है वो काढ़े का बस्ती और फिर इसी प्रकार से उनका संसर्जन क्रम करते हुए ही आगे आप जैसे आवश्यकता अनुसार अनुवासन या निरूह बस्ती व्यत्यासात ये क्रम वहाँ पे होगा। अब आगे बात जो 22 और 23 श्लोक में खास करके आती है वो शीते वसंते च दिवानुवास्यौ रात्रौ शरद ग्रीष्म घनागमेशु। तो इसमें खास करके अनुवासन बस्ती कौन से समय में या कौन से काल में करनी चाहिए उसका विस्तार से हमें उत्तर मिलता है। खास करके विंटर और स्प्रिंग सीजन में डे टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि जो है या बिल्कुल सुबह और रात्रि यहाँ पे शीतता अधिक रहेगी, इसलिए दिन में करनी है। तो सूर्य की रोशनी के या सूर्य की उष्मा के कारण वो पर्याप्त उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। और खास करके आगे जो बात आती है शरद और ग्रीष्म, इस ऋतु में यानी शीतकाल में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और खास करके इवनिंग को प्रेफर हम ज़्यादा करते हैं। अब आगे विषय आता है तो प्रत्यागते च अनुवासनीय दिवा प्रदेय विशिताय भोज्यम। इस श्लोक में खास करके अनुवासन और निरूह बस्ती इनका क्रम यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो क्रम को संक्षेप में समझते हैं हम। यहाँ पे खास करके अनुवासन बस्ती जो है वो दिन में देना चाहिए। खास करके जब वो देने का जो अनुवासन बस्ती जो है वो मात्रा बस्ती की तरह नहीं है 20 ml वाली, तो वो बाहर आना भी अपेक्षित है। वो गुदमार्ग से बाहर आ जाए तब उस व्यक्ति को रात भर कुछ खाने को नहीं देना है और फिर दूसरे दिन
मध्याह्न के समय पर यानी दोपहर में, ठीक है, और रात्रि में भोजन देना चाहिए। और ऐसा होने के बाद फिर तीसरे दिन जो है वो उसको बस्ती देनी है। और कौन सी बस्ती देनी है? ये निरूह बस्ती। तो इस प्रकार से पहले दिन अनुवासन बस्ती, फिर निरूह बस्ती और फिर अनुवासन बस्ती, इस प्रकार के जिसको व्यत्यासात क्रम कहते हैं, ऐसा देना चाहिए। सो ऑन एवरी थर्ड फिफ्थ डे अंशियस एनिमा, दैट मीन्स द अनुवासन बस्ती शुड बी गिवन। ओके, सो कभी भी निरूह बस्ती जो है वो अकेली नहीं दी जाती, ये भी संक्षेप में इसका तात्पर्य है। ऑलवेज अनुवासन बस्ती मस्ट बी फॉलोड बाय निरूह बस्ती। सो निरूह बस्ती अकेली नहीं की जाती, अनुवासन बस्ती शायद अकेली की जा सकती है ऐसे कुछ व्याधियों में, लेकिन निरूह बस्ती कभी अकेली नहीं करनी चाहिए। हाँ? तो उसके पूर्व कर्म के तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं अनुवासन बस्ती करना चाहिए, क्योंकि उससे स्नेहन ठीक से होता है। अब देखिए कौन से व्याधियों में कितनी संख्या होनी चाहिए, वो हमें 25वें श्लोक में उत्तर मिलता है, खास करके अनुवासन बस्ती के लिए। तो कफ प्रधान व्याधि अगर है सो 1 से 3, पित्त प्रधान है तो 5 से 7, और वात प्रधान है तो 9 से 11, इस प्रकार उसकी संख्या होनी चाहिए। यह हमें उसकी संख्याओं के बारे में मार्गदर्शन मिलता है 25वें श्लोक में। खास करके जो निरूह का सीक्वेंस है उसके लिए हमने क्या हम कहते हैं सावधानी बरतनी पड़ेगी, उसका मार्गदर्शन हमें 26वें श्लोक में मिलता है। और वो तो कहाँ पे, सॉरी, नरो विरिक्तस्तु निरूह दानम विवर्जयेत सप्त दिनानि अवश्य। तो यहाँ पे खास करके जिस व्यक्ति ने विरेचन का सेवन किया है उसको 7 दिन तक निरूह बस्ती सेवन कदापि नहीं करनी चाहिए। देखिए विरेचन से पहले ही जो है वो शुद्धि हो चुकी है, और आप अनुवासन बस्ती तो उतनी बाउट्स या हम कहेंगे मल के वेग उतने नहीं आते उससे, लेकिन निरूह बस्ती जो है वो फ्लश जब होता है तो पूरी तरीके से रुग्ण का बल बिल्कुल कम हुआ होता है। तो इसीलिए जिसको विरेचन करा है उसको तुरंत निरूह बस्ती कभी भी लेनी चाहिए। ये यहाँ पे केयर जो है वो खास करके चीज ध्यान में रखनी है, और इसीलिए इसको सिद्धि स्थान कहना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेट आपको किस प्रकार से चिकित्सा का फल अच्छा ही मिलेगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, वो सभी मार्गदर्शन हमें खास करके सिद्धि स्थान में मिलता है। अब देखिए ये आगे बस्तिर वया स्थापिता, इस श्लोक में खास करके हमें पंचम प्रश्न जो है उसका उत्तर यहाँ पे मिलता है कि निरूह बस्ती जो है उसकी यानी फलश्रुति क्या है, बेनिफिट्स क्या है। तो वहाँ पे प्रिवेंट एजिंग, प्रमोट्स हैप्पीनेस, अकम्प्लिश ऑल ऑब्जेक्ट्स, मीन्स हमारे जो कुछ ध्येय धोरण है उनको प्राप्त करने की स्थिति, विषय प्राप्त करने की स्थिति हमें प्राप्त होती है, मिलता मतलब जब भी हमारी इंद्रिया शारीर बल अच्छा होगा तभी ये है। तो ये कौन से व्याधि में कौन सी बस्ती इस्तेमाल करनी है उसके ऊपर ये सारा जो यश है वो हमें प्राप्त होने वाला है। इन जनरल यहाँ पे हमें इन श्लोकों में वो उत्तर मिलता है कि बस्ती के फायदे क्या है, खास करके आयु स्थापन या हम वय स्थापन कहेंगे, ये पहला उसका निरूह बस्ती का गुणधर्म बताया है। उसके बाद में अनुवासन के बताते हैं, देहे निरूहेन इत्यादि श्लोकों में 29 से लेकर 31 में खास करके हमें यहाँ पे अनुवासन बस्ती के गुण मिलते हैं। और उसमें खास हमें निका एक सभी को जो अच्छा लगेगा वो कौन सा है यहाँ पे प्रॉपर्टी, वर्ण बल प्रदम च। तो वर्ण जो है आपका स्किन टोन, वो चेहरा हो या त्वचा जो है वो खुलती है, निखार हिंदी में जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होता है। वर्णप्रद, बलप्रद, तो ये सबसे हम कहेंगे। और सीक्वेंशियली इस प्रकार से वहाँ पे हमें उसके फायदे वर्णन यहाँ पे चरक संहिता में मिलता है। अनुवासन बस्ती के जो गुण या फायदे हैं उसके बाद हमें प्राप्त होता है यहाँ पे जो 32 से 34वें श्लोक में खास करके
स्तब्धाश्च ये संकुचिताश्च ये अपि ये पंगवो ये पिच भग्न रुग्णाः, व्याधियों के साक्षात यहाँ पे हमें वर्णन मिलता है कि किन व्याधियों में बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला श्लोक जो है वो खास करके संकुचित अंग ऐसा शब्द प्रयोग आता है, ठीक, जहां पे सिकुड़ गए हैं अंग। तो आप देखोगे कि खास करके एजिंग पेशेंट में हम देखते हैं, बुआ देखी होगी आपने, दादी देखी होगी या दादाजी देखे होंगे कि वो विनमन होता है, आगे झुक जाते हैं। ऐसे स्थितियों में भी, या कुछ एज ही होना चाहिए फैक्टर, ऐसे नहीं किसी कारण से पंगुता आई हो या फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसे स्थिति में भी उसको हील करने के जो प्रॉपर्टी है वो बस्ती में होती है। और आगे मैं जो आपको बोला, मुझे वही आपको शेयर करना है कंटेम्पररी साइंसेस में, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती स्पेशली। तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ, मैंने उष्ण कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं द्रव्य या बस्ती इस्तेमाल करनी है, और शीत गुण वाली कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये वर्णन मिलता है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, स्पेशली अनुवासन बस्ती के यहाँ पे हमें किसमें नहीं करना है वो भी खास करके हमने ध्यान में रखना चाहिए। फिर निरोह बस्ती के हमें अनर्हता कौन से कंडीशंस में या व्याधियों में नहीं करना है, वो रुग्ण की अवस्था होती है या किस व्याधि में नहीं करना है, वो मार्गदर्शन मिलता है। और ये जो श्लोक है 40वां, इसको खास करके आप ध्यान में रखिए, न केवल संहिता अध्ययन 3 के लिए अपितु संपूर्ण आपके चिकित्सा काल में जो है आगे के, वो भी ध्यान में रखिए। अगर बस्ती प्रयोग आप नहीं करते हो तो आप यशस्वी चिकित्सक नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे तस्मात् चिकित्सार्थम इति ब्रुवन्ति सर्वाम चिकित्साम अपि बस्ती में के, यानी हम बाकी के 4 कर्म एक तरफ और बस्ती एक तरफ, इतना उसको महत्व यहाँ पे प्रतिपादित करते हैं। ये आपको एग्जैगरेशन भी लग सकता है, लेकिन बस्ती बहुत कम ऐसे स्थितियाँ होती है जैसे जहाँ पे गुदभ्रंश हुआ है, टोन गया है बिल्कुल ही रेक्टम का, या रेक्टल कैंसर जैसी स्थितियाँ हैं, तो ही हम बस्ती जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वमन विरेचन जो बाकी कर्म है उनसे अधिकतर बस्ती का प्रयोग व्यवहार्य भी है और अधिक गुण वाला, उसी अर्थ में यहाँ पे हमने उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्पेशली मोड ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती, नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षिम गत्वा शकृद्दोष चयम विलोड्य संस्नेह कायम सपुरीश दोषाः सम्यक सुखैन इति च यह स बस्ती। स्पेशली यहाँ पे 1 by 1 हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला शब्द जो है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये एलाबोरेट करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी आर्टिकल्स के मुझे देने हैं, इसलिए इसको थोड़ा एलाबोरेट करूँगा मैं। खास करके ये श्लोक जो है, ये हमने देखा ना, नाभि प्रदेशम 40वां और 41वां, उसको हम थोड़ा सा विस्तार से देख रहे हैं। ये आप कृपया इसके ऊपर ध्यान दें। और खास करके नाभि प्रदेशम कटी पार्श्व कुक्षिम गत्वा, गत्वा शब्द का अर्थ है इट स्प्रेड्स और इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। स्पेशली नाभि प्रदेश का अर्थ क्या लेना चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। कटी प्रदेश का अर्थ क्या लेना चाहिए, लंबर रीजन। दिस इज ऑल सरफेस एनाटॉमिकल एरिया, प्रैक्टिकली दे आर डिस्क्राइब। लेकिन वहाँ के जो अंदर एक्चुअली अवयव है वो कौन से है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिखा है। कटी माने कोलॉन और सैक्रल प्लेक्सस, पार्श्व माने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन यहाँ पे आ जाएंगे, और कुक्षी यानी पूरी पेल्विक कैविटी, खास करके उसमें रेक्टोसिग्मॉइड रीजन भी आएगा। और पेल्विक कैविटी के अंदर जो भी अवयव होते हैं, जैसे बस्ती है, ब्लैडर है आपका, स्त्री शरीर है तो वहाँ पे गर्भाशय है, ठीक है, रेक्टम है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे आएगी। तो बस्ती इन सभी जगह में जाते हुए शकृद्दोष चयम विलोड्य, ऐसा 40वां श्लोक का आधा भाग कहता है। तो विलोड्य शब्द का अर्थ होता है चरणी। मराठी भाषेत आपण द्रव्याने ताक घुसळतो त्या पद्धतीने आत गेल्यानंतर हे द्रव्य काय करणार आहे, तो इट वर्क्स एक्शन लाइक अ चर्निंग मोमेंट। हाँ, ऐसे क्या होता है, जो दोष वहां पे निबिड़ बहुत
दिनों से, क्योंकि क्रॉनिक डिसीजेस में ये स्थिति होती है, उसको वहां से लिक्विफाई किया जाता है। खास करके शब्द प्रयोग ग्रंथकार वहां पे करते हैं शकृत और दोष। शकृत यानी मल, फिकल मैटर, और दोष जो है वो विकृत, वात और वात एसोसिएटेड, वातानुबंधी आम या सामवात हो सकता है, या वात कफ हो सकता है। इस प्रकार से आप उसका अर्थ लीजिए। तो इससे क्या होता है, इट्स नॉट ओनली मैकेनिकल एक्शन, चर्निंग वहां पे है, तो मोबिलाइजेशन भी वहां पे है, लिक्विफिकेशन है, तो ये केमिकल एक्शन भी वहां पे है। तो इनसे क्या होता है, स्टिमुलेट्स द पेरिस्टालसिस। सो ब्रेकिंग डाउन भी है वहां पे, जो मॉर्बिड सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई है, तो ऐसे मलों को, दोषों को वहां पे मैकेनिकल और केमिकली भी एक्शन होके उसको बाहर निकालता है। तीसरा भाग आता है वो 41वें श्लोक में, संस्नेह कायम। काय शब्द शरीर के लिए है, तो दिस स्नेह जो है उसके कारण से पूरे कोलॉन में लुब्रिकेशन होता है, धातुओं का पोषण होता है। और अगर आधुनिक दृष्टि से वहां पे मैकेनिकल क्रियात्मक दृष्टि से देखें तो लिपिड बेस अब्सॉर्प्शन जो है वो रेक्टल म्यूकोजा से बहुत अच्छा होता है खास करके। और ये जो एक्शन है संस्नेह कायम, इस शब्द से एंटेरिक और सिस्टमिक सर्कुलेशन इफेक्ट जो है वो हमें मिलता है, प्राप्त होता है। और फिर भाग आता है इजी एलिमिनेशन, दैट इज सुखेन निर्हरणम। तो ये पॉसिबल हो पाता है। तो मल हो, दोषों के साथ मल हो, या मल दोष आम तीनों हो, या मल और आम हो, इस प्रकार की कोई भी स्थिति हो, तो वातानुलोमन, कोष्ठ शुद्धि और जो यहाँ पे शब्द प्रयोग जो किया है वो है सिस्टमिक बैलेंस, ये प्राप्त होता है। तो 40वें और 41वें श्लोक में हमें मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो, अब ये आपके सामने मुझे रखना था। खास करके यहाँ पे 3 आर्टिकल मैंने आपके सामने 3 कंडीशंस हम कहेंगे मोड ऑफ एक्शन की रखी है। तो पहली जो है, तो ये सभी पबमेड या पीएमसी जिसको इंडेक्सिंग कहते हैं, आप आगे जाके समझोगे, या आपके जो अध्यापक है उन्होंने बताया भी होगा आपको। सिस्टमिक एब्सॉर्प्शन ऑफ बस्ती ड्रग्स, खास करके स्टडी ऑफ लेखन बस्ती हुआ है, वो नीचे रेफरेंस भी आपके सामने है। तो ये क्या किया है इसमें, मार्कर कंपाउंड डिटेक्टेड इन ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बस्ती जो दी है वो रेक्टम में और कोलॉन्स में जाती है, ठीक है ना, लेफ्ट लैटरल पोजीशन लेके बस्ती दी जाती है, तो वो बस्ती जाती है रेक्टम। लेकिन इसका उस बस्ती द्रव्य में एक मार्कर कंपाउंड डाला गया था इस प्रयोग में, और फिर वो जो है वो ब्लड में उसके मार्किंग्स, जो मार्कर्स है वो मिले थे, और यहाँ पे गैलिक एसिड का खास करके इस्तेमाल किया था। तो दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द सिस्टमिक बायो अवेलेबिलिटी वाया रेक्टल रूट। तो ये जो रेक्टल रूट है वहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी द्रव्यों की, और इसी से हम मांस रस भी देते हैं, दूध भी देते हैं, और बहुत सारे ऐसे सिद्ध तेल, स्नेह यूज करते हैं। तो वो सभी द्रव्यों का एब्सॉर्प्शन जो है, बायो अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो पाता है। इसको ये संस्नेह कायम, ये जो सूत्र है, होल बॉडी इफेक्ट जो है इससे मिलता है, इसको ये सपोर्ट करता है। दूसरा एक्शन है कोलॉन रिच एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक्स। सो ये रेडियोलॉजिकल स्टडी के लिए रेफरेंस आपके सामने गुप्ता और बाकी विद्वानों का दिया है, जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। तो यहाँ पे बस्ती द्रव्य स्प्रेड्स थ्रू आउट कोलॉन डिपेंडिंग ऑन प्रेशर एंड टेक्निक्स। सो नाति द्रुतम नाति विलंबितम, ऐसे आगे जो सिद्धि स्थान में बस्ती दाता के दोष, बस्ती किस प्रकार से देनी है, बस्ती नेत्र के दोष, ये सभी आते हैं। ये बातें क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें समझ में आता है। सो इससे क्या होता है, ये रेडियोलॉजिकल जो स्टडी हुआ है, दूसरा आपको रेफरेंस सामने रख रहे हैं, तो इट वैलिडेट्स हाउ इट एंटर्स और स्प्रेड्स इन नाभि गत्वा, कटी गत्वा, पार्श्व गत्वा, कुक्षी गत्वा, ये जो शब्द हमने देखे थे उसको ये सपोर्ट करता है। दूसरा, तीसरा है फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इफेक्ट्स। सो ये प्रयोग आपके सामने जो है वो बस्ती एक्ट्स बियॉन्ड लोकल बाउवेल क्लींजिंग ओनली। तो सिस्टमिक
उसका जो इफेक्ट है हमें दिखता है, वो नियमन हमें पूरा होल बॉडी के ऊपर दिखता है। सो यहाँ पे इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी से रिलेटेड लिपिड प्रोफाइल उससे कैसे कम होता है, ये रेफरेंसेस आपको 1 2 3 जो सामने दिए हैं वो वाया रिलेवेंट रेफरेंसेस आप देखिए। और सिस्टमिक थेरापेटिक आउटकम्स इन क्रॉनिक डिसीजेस, इसके ऊपर भी इसका काम हो चुका है। तो ये मोड ऑफ एक्शन के तौर पे हम बहुत कम बार समझा पाते हैं बच्चों को, अध्यापक भी। तो इसके लिए हमें ये रिसर्च आर्टिकल जरूर संहिता अध्ययन 3 के विद्यार्थियों के सामने रखने चाहिए, ताकि उनका विश्वास जो है वो बढ़े इन चिकित्सा के ऊपर। आगे जो है हमारी समय की मर्यादा थोड़ी सी, हम उसमें ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसका आगे ले जाते हैं थोड़ा। और ख़ास करके अयोगहीन योग जो है वो निरूह बस्ती के बारे में आगे हमें 43 नंबर श्लोक पे मिलते हैं। और अति योग के लक्षण, फिर सम्यक योग के लक्षण, तो अनुवासन के भी अलग से बताए हैं, निरूह के भी अलग से बताए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसको हम कम ज़्यादा नहीं आंक सकते। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो सम्यक पद्धति से ही होना चाहिए। और 1999 से लगभग 2006 तक पंचकर्म विभाग जो है उसमें मैं कार्यरत था, और मुझे ज़्यादा की जिम्मेवारी दी थी। तो केवल वमन मदन फल जो है उससे ही वमन कराना, क्योंकि वो अनपायित्वात है, तो हम हर एक स्थिति में वो मदन फल का यूज वमन के लिए कर सकते हैं। कल्पना सिद्धि अध्याय में हम कल्पना सिद्धि में नहीं, सॉरी, मदन कल्प में हम देखते हैं मदन फल के गुणधर्म, कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में। लेकिन हमने देखा कि भाई वर्णन जो है चरक संहिता का वो ईसा पूर्व 1500 से 4वीं शताब्दी तक का सारांश हमें वहां पे मिलता है। और खास के सिद्धि स्थान जो है वो दृढ़बल संपूरित है। तो 4थे शतक के वक्त का कालावधि अगर हम इसको पकड़े इस सिद्धि स्थान के लिए, कल्पस्थान के लिए, तो हमें ध्यान में आता है कि भाई उस वक्त की रुग्ण का बल, व्यक्ति का बल जो था वो आज के शरीर का, व्यक्ति का बल, ह्यूमन का जो है स्ट्रेंथ वो नहीं है। तो उसके लिए मदन फल अनपायित्वाद इस प्रकार से बात होते हुए भी मदन फल यूज करने के बाद जो है वो हमें अतियोग के लक्षण दिखाई दिए। तो ये शास्त्र को जो है समझते हुए कालानुरूप उसमें व्यवहार्य बदल भी हमें करने आवश्यक है, ये मैं जरूर इस तौर पे कहना चाहूँगा। फिर अनुवासन के अयोग या हीन योग हम कहेंगे, उसका वर्णन आता है। अनुवासन के अति योग का वर्णन आता है। और खास करके कितने समय तक वो अनुवासन बस्ती जो है वो शरीर में रिटेन होनी चाहिए, उसका यहाँ पे हमें कुछ मार्गदर्शन मिलता है। खास करके वहाँ पे ग्रंथकार बताते हैं 3 याम तक जो है वो शरीर के अंदर रहना चाहिए। हम बहुत बार देखते हैं कि भाई अनुवासन बस्ती की मात्रा जो दी जाती है वो लगभग 100 ml से ज़्यादा ही होती है। और ऐसे वक्त बहुत बार वो इमीडिएटली, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो सकता है, अनुवासन कब देते हैं या मात्रावस्थी कब देते हैं इसके ऊपर हम बाद में कभी प्रकाश डालेंगे। तुरंत खाने के बाद देना चाहिए, वो क्यों तुरंत खाने के बाद देना चाहिए, वगैरह वगैरह। और निरूह जो है वो खाली पेट देना चाहिए, कम से कम 4 घंटा पहले खाया हुआ पेशेंट चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। तो ये बातें किस लिए आती है कि वो कहाँ तक वो बस्ती जानी चाहिए, किस अवयव तक जानी चाहिए, सिर्फ कोलॉन्स तक जानी चाहिए या उससे आगे भी जानी चाहिए। इसके लिए ये सब बातें डिटेल्स बताइए। उसको हम अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें साइड इफेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस दिखने ही वाले हैं। तो 9 आवर्स की बात हम कर रहे हैं, तो 9 आवर्स रहेगा ही नहीं अगर वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट है तो, या उसको ठीक से पेट साफ नहीं हुआ है तो किसी कारण से। तो अगर वो वापिस आती है तो पुनः देना आवश्यक हो जाता है। वेग मलोत्सर्ग करने के बाद पुनः वो अनुवासन बस्ती की उतनी ही मात्रा देनी चाहिए। ये हमें सिद्धिस्थान में आगे अन्य विषय में वर्णन आता है। अब ये शेड्यूल जो है वो संख्या अनुसार बस्ती के यहाँ पे प्रकार कह सकते हैं हम बताए। उसको कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कम से कम संख्या 8 है तो उसको योग बस्ती कहते हैं, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड कह सकते हैं हम, क्योंकि हमें
पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी रश बहुत होता है। शायद ही किसी क्रॉनिक डिसीज में एडमिट किए पेशेंट को कर्म बस्ती करते होंगे, लेकिन ओपीडी लेवल पे तो 8 बस्ती भी पेशेंट ने ले ली है, योग बस्ती तो बहुत हो गया, ऐसी स्थिति आती है। और रुग्ण को शायद उतना आनंद नहीं मिलता होगा, लेकिन वैद्य को जरूर आनंद मिलता है कि भाई 8 दिन तो इसने ली कम से कम। मतलब अगर आवश्यकता है और व्याधि का स्वरूप वैसा है तो कर्म बस्ती के लिए भी हमें पेशेंट को तैयार रखना चाहिए, या कन्विंस करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको इस जो स्लाइड्स है, या स्लाइड में आपको कर्म बस्ती किस प्रकार से देनी है। ए जो शॉर्ट फॉर्म है, स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं सामने की, तो ए अनुवासन के लिए है और एन जो है वो निरूह के लिए है। सो तैल बस्ती और काढ़े की बस्ती, अनुवासन बस्ती तो तेल की और निरूह काढ़े की बस्ती। तो उसका क्रम मेलन कैसा है सिद्ध स्थान में, वो आगे वर्णन आता है। तो यहाँ पे अगर आप कर्म बस्ती दे रहे, कर्म बस्ती की टोटल संख्या कितनी है, आपने अभी इस श्लोक में देखा कर्म बस्ती 30 है। तो 30 संख्या में अनुवासन देखिए, पहले 2 से शुरू करना है, सक्सेसिव 2 डेज, और लास्ट में जो है वो 6 पुनः जो है वो वहां पे आपको अनुवासन की देनी है। यहाँ पे आप देखोगे काल बस्ती के लिए पहला 2 अनुवासन है और फिर लास्ट के 4 है, तो इस संख्या को भी आप समझिए। और योग बस्ती जो टोटल संख्या 8 होती है, अनुवासन से शुरू करते हैं लेकिन लास्ट 3 वाले अनुवासन है। ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। सो 3 पंच वाहुश्च चतुरोऽथ षड्वा वातादिकानाम अनुवासनीयानाम। तो यहाँ पे अब ये वात की स्थिति के अनुसार तो कैसे देने हैं, तो अनुवासन बस्ती के कितने संख्या होनी चाहिए, तो अगर वात प्रधान है व्यक्ति तो कितने होने चाहिए स्थिति है, तो ऐसे वर्णन यहाँ पे आता है। आगे जो है ये शिरो विरेचन का भी यहाँ पे 50 से लेके 53 तक यहाँ पे हमें लक्षण मिलते हैं। और ये खास करके छठा जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे हमें ग्रंथकार जो है देते हुए दिखते हैं। तो अति योग की जो है चिकित्सा के तौर पे भी आगे वर्णन मिलता है, तो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये शिरो विरेचन मतलब नस्य के बारे में जो है वो सम्यक योग, हीन योग, अति योग का वर्णन मिलता है। उसकी संक्षेप में वहाँ पे ये बहुत क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स है। तो आगे बहुत बार हमें ये प्रश्न होता है कि वमन जब पूर्व कर्म शुरू करते हैं और विरेचन कर्म बाद में फिर शुरू करते हैं संसर्जन क्रम खत्म होने के बाद, तो ये परिहार काल कितना होना चाहिए। परिहार काल जो है ये शब्द प्रयोग विशेषतः जो है वो इंटरवल्स बिटवीन 2 कोर्सेस ऑफ एनी शोधना, इस प्रकार से आप इसको जान। गैप कितनी होनी चाहिए ये भी इसका अर्थ निकलता है। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हमने जो डूज एंड डोंट्स, वो डाइट के हो या बिहेवियर के हो, आहार के हो या विहार के हो, उसको कितने काल तक पालन करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मार्गदर्शन संक्षेप में मिलता है, ऐसा कहूंगा, क्योंकि इसके डिटेल्स जो है वो अन्य जगह पे भी हमें मिलते हैं। खास करके 7वें प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें 51 श्लोक में मिलता है, और वहां पे ग्रंथकार कहते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। तो वो बताते हैं अत्यासन से लेके खास करके अहित भोजनम च, यहां तक ये पूरे जो है वो परिहार्य विषय के तौर पे ग्रंथकार बताते हैं। आगे 55वां और 56वां जो श्लोक है वो 10वें प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में हमें मिलता है। बद्धे प्रणते विषमं च नेत्रे मार्गे तथा अर्षः कफविट विबद्धे। यहाँ पे खास करके जो 10वां प्रश्न है उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है कि मल, और खास करके वहाँ पे वात ऐसा शब्द है लेकिन वो अपान वायु के लिए है, खास करके फ्लैटस विकृत,
तो मूत्र का वेग जो है वो अगर उत्पन्न हो जाए तो बस्ती का प्रयोग हम यहाँ पे ठीक से किया है ऐसा हम जान सकते हैं या हमें ज्ञात होना चाहिए। अब आगे ये भी आते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग एनिमा टू एंटर स्मूथली, क्या हो सकता है? तो वहाँ पे बस्ती नेत्र ब्लॉक हो सकता है, रेक्टल पासेज अगर ठीक से क्लियर नहीं है, किन कारणों की वजह रचनात्मक विकृति हो सकती है, या बहुत सालों से उस व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हार्ट स्टूल हो सकती है, प्रवाहिका के कारण म्यूकस हो सकता है एक्सेस प्रमाण में वहाँ पे। आगे जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अप्रोप्रिएट इवैक्यूएशन के कारण भी बताए। मतलब क्या है कि इन कारणों का हमने वर्जन करना चाहिए, ये स्थिति वहाँ पे रूल आउट करनी चाहिए और ऐसे ही स्थिति में हमने ये प्रयोग सभी जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस्ती किन कारण से, ये जो प्रश्न आता है, रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बस्ती टू क्योर क्यूरेबल डिसीजेस। अब वहाँ पे क्यूरेबल यानी साध्य व्याधियों के लिए, असाध्य व्याधियों के तो चिकित्सा नहीं है वहाँ पे। हम उसको क्या है, पेशेंट का क्लोज रिलेटिव हो या पेशेंट अगर अच्छा ज्ञापक है, सत्ववान है, तो उसको भी हम थोड़े क्या कह सकते हैं, स्वीट वर्ड्स में, उसको बुरा ना लगे ऐसे शब्दों में वहाँ पे उसको हम मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी व्याधि जो है वो इसी प्रकार से कम ज़्यादा चिकित्सा लेते हुए ही इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन व्याधि अगर साध्य है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण आपके सामने 57 से 59 नंबर श्लोक में वहाँ पे लिखे हैं, जैसे मेदो धातु और कफ दोष इनकी वृद्धि हो जाए और रुकी हुई वायु जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में जाते हुए शूल, शून्यता इत्यादि पद उत्पन्न करे। तो अब ये स्थितियां जो है वो हमें हमारी लिमिटेशंस के तौर पे हमने यहाँ पे रखना चाहिए इन स्थितियों को। ठीक है, तो किस स्थिति में हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे या ऐसे कारण वहाँ पे उत्पन्न होते हैं तो हमें यश के लिए, चिकित्सा में संपूर्ण यश के लिए मर्यादा है, ऐसे हमने जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और एक 59 और 60 श्लोक में आपने चिकित्सा तो ठीक की है लेकिन वो व्याधि अच्छी नहीं हो रही या हमें उसमें फायदा नहीं मिल रहा है ऐसी चिकित्सा में, तो क्या हो सकता है कि हमने व्याधि जो है वो ज़्यादा उत्कट या तीव्र है लेकिन हमने पोटेंसी कम यूज की है, कम मात्रा में या कम पोटेंसी में हमने औषध इस्तेमाल किया है, तो हमने काल का ठीक से हमने पालन नहीं किया है, तो या ठीक तरीके से मिथ्या उपचारात, मतलब जो भी सीक्वेंस हो, डोजेस हो, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, इन सभी बातों को अगर हमने ठीक से पालन उसका नहीं किया है, इग्नोर किया है, तो भी हमें उतना उसमें फायदा नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। आशा है हमने समय में आपको फ्री करने की कोशिश की। तो कुछ प्रश्न है तो उनको लेंगे हम, अगर नहीं है तो यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. As we are in the last phase of the session, I am here for vote of thanks. On behalf of the organizing committee and all the attendees, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed guest speaker, Dr. Manoj Kumar Chaudhary, sir, for delivering such an enlightening session for today. Your session on Kalpana Siddhyadhyay has not only enriched our knowledge, but also inspired our students to delve deeper into the wisdom of Charak Samhita. We thank you for your time, your expertise, and your guidance, which helped us to understand clinical aspect of Kalpana Siddhyadhyay with contemporary approach and pragmatic approach also. Further, I would like to thank our principal sir, vice principal sir, for granting permission for this lecture. I also express my gratitude to the administration of our college for giving us opportunity to organize this session. I am especially thankful to our HOD, Dr. Shirke sir, for arranging this session with an eminent speaker like Dr. Manoj Kumar sir. I thank all the staff members of Samhita department for their assistance.
Finally, I thank all the students of third year. And now I declare that this session has concluded. Thank you very much, sir. Thanks once Thank again. you. Thank you very Thank you. much. Thank you, one and all. Thank you, sir.